नहीं है, ठीक है। देन यू हैव quality of public distribution varies from state to state. So again, that is also, it has a something, I would say कि इसका impact होगा, it will have impact on the poverty, but not on the lines. You know, you need to look at the line. तो poverty line मतलब होता है कि let's say यूपी में poverty जो है 60 रुपए से define करी, ठीक है, और वहीं पे तमिलनाडु में let's say the poverty rate was 80, ठीक है, और लेट्स से कहीं और राजस्थान में, दीज आर यू नो दीज आर नॉट ऑफिशियल नंबर, ये सब मन से बनाए हुए नंबर्स हैं, लेट्स से द पॉवर्टी लाइन वाज 30, ठीक है। सो व्हाई दिस डिफरेंस, व्हाई दिस पर्टिकुलर डिफरेंस इज देयर, ये 30, 60 और 80 का डिफरेंस क्यों है? दिस पर्टिकुलर थिंग एंड दिस पर्टिकुलर थिंग विल टेल यू द नंबर ऑफ पीपल जो पुअर होंगे, ठीक है। सो this particular thing is being asked, तो उसमें क्या हो जाएगा, poverty rates very no, the correct answer is B। बाकी सारी चीजें बताती हैं कि कहां पर ज्यादा पुअर होंगे, कहां पर कम पुअर होंगे। लाइंस, ऑफिशियल लाइंस क्यों अलग अलग हैं, that will be explained by your price levels, ठीक है। in context of which of the following some scientists suggest the use of cirrus cloud thinning technique and the injection of sulfate aerosols into the stratosphere, ठीक है। again this is also an easy question, this was in the current affairs, this was current affairs inspired question that year it was in the news, IPCC reports में ये सब दे रखा था। so आप as you can see, अब तुम्हें कुछ नहीं आता है तो look at this world, look at this particular thing, यहाँ पर जो दे रखी है that is aerosols cloud, ठीक है। so यहाँ से at least you can try to connect it, you know, that creating the artificial rains in some regions, ठीक है। okay, then you have reducing the frequency cyclone, it has nothing to do with this particular thing, then reducing the adverse effect of solar wind, it has nothing, that reducing the global warming, so the correct answer is D। okay, so वही है कि अगर आपको नहीं पता है तो try to just connect the dots और try to you know simply word to word association करने की कोशिश करो, ठीक है। आई बात समझ में? दिस could have been the answer, क्योंकि यहाँ पे क्लाउड दे रखा है तो इसलिए मैंने उसको डायरेक्टली नहीं काटा है, इन दोनों को मैं आउटराइटली काट दिया बिकॉज डायरेक्टली नॉट रिलेटेड टू दैट, बट इसको नहीं काटा बिकॉज क्लाउड, एरोसोल, स्ट्रेटोस्फीयर आर रिलेटेड टू द रेंज आल्सो, ठीक है। तो इसलिए फिर थोड़ा सा फिर वहां पे आपको थोड़ा जानकारी होगी तो यू विल बी एबल टू डू इट बहुत जल्दी से। वन ऑफ द फॉलोइंग आर द टर्म्स पायरोलाइसिस एंड प्लाज्मा गैसिफिकेशन मेंशन्ड, ठीक है। तो एक्सट्रैक्शन ऑफ द रेयर अर्थ मटेरियल, ठीक है, प्लाज्मा गैसिफिकेशन, ठीक है। सो एज यू कैन सी नेचुरल गैस एक्सट्रैक्शन, हाइड्रोजन फ्यूल, वेस्ट टू एनर्जी टेक्नोलॉजीज। सो दिस वाज आल्सो आई वुड से एन इजी क्वेश्चन, क्योंकि ये दोनों ही क्वेश्चन आई वुड से करंट अफेयर में थे पहले तो। सो बोथ आर करंट अफेयर क्वेश्चंस, पीटीवीटी जो आते रहते हैं एनुअल कंपाइलेशन, उन सब में ये दे रखे होंगे बिकॉज दीज आर करंट अफेयर क्वेश्चंस। ओके, आवाज आ रही है ना गाइस? वो मेरे को मैसेज मिला था कि आवाज कट रही है, तो थोड़ा फिक्स किया वापस से। ऑलराइट, let's look at question number 27. So this was basically a tough question, I would say, although agar aap basic, if you are preparing environment in a very planned manner, environment ecology ko bahut planned manner mein karte hain, तो because I'll share my notes of environment, so you will see कि अगर उस तरह से if you'll do it ना, तो it's a very easy question because I have almost covered most of the important biosphere reserves and their maps, then that is very easy, but I feel कि this was a tough question, ठीक है। even if you have those things in your notes, recalling these things is very very tough, तो the correct answer is A, ठीक है। अभी क्या है कि how to basically do additional research in PYQs, so what you should do is कि बायोस्फीयर रिजर्व्स को पकड़ो, उनके आसपास की रिवर्स को पकड़ो, ठीक है, उनके आसपास के नेशनल पार्क को, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को, बहुत बड़े बड़े बायोस्फीयर रिजर्व्स को पकड़ो। सिर्फ ये नहीं कि तुम हर, ऑल्दो आई थिंक 11-12 ही हैं अपने पास, ठीक है, आई थिंक 11 बायोस्फीयर रिजर्व्स आर देयर, तो बहुत बड़ा नंबर नहीं है, स्टिल उसमें भी तुम सबसे इंपॉर्टेंट वंस, द वंस विच आर इन न्यूज रेगुलरली कॉन्स्टेंटली, उनको पकड़ के चलो, ठीक है। Some species of, अब एक जो जनरल ऑब्जर्वेशन आई हैव सीन दैट 98% टाइम्स दिस सम वाला जो होगा ना, ये करेक्ट होगा,
ठीक है। अब ये नहीं कि भाई बिकॉज व्हेन आई एम टेकिंग द पीवाईक्यू सेशन आई जस्ट सेड दैट सम वाला 98% टाइम करेक्ट होगा तो आप आंख बंद करके बोल दो, ठीक है। अब उसने यूपीएससी ने लिख दिया सम लायंस फ्लाई, ठीक है, तो बोले कप्तान ने तो बोला था कि मतलब 98% टाइम करेक्ट होगा तो सही है ये, ऐसा नहीं है, ठीक है। नो कोई शेर जो है उड़ता नहीं है, ठीक है। सो अंडरस्टैंड दिस थिंग कि कॉमन सेंस तो आपका अपने को लगाना ही पड़ेगा, यू नो द स्टेटमेंट शुड नॉट बी चैलेंजिंग योर प्रायर अंडरस्टैंडिंग, योर प्रायर कॉमन सेंस। सो इट सो हैपेंड टीटीएस में एक क्वेश्चन था कि एंड्स के ऊपर था एक क्वेश्चन और एक टर्माइट्स के ऊपर था। सो उसमें एक स्टेटमेंट था दैट सम टर्माइट्स and some species of ants and some species of termites are used in as in biofertilizer या कुछ ऐसा कुछ। अब they were like हाँ टर्माइट्स भी करते ही होंगे, एंड उसके पीछे एक बंदा पड़ गया उसको प्रूव करने में। भाई टर्माइट तो खुद ही वो बनाती है, ठीक है। हाउ कैन टर्माइट हेल्प यू इन एग्रीकल्चर? तो अब देखो ये भी कॉन्टेक्चुअल है, दोज हु हैव नॉट सॉल्व दैट पेपर वोंट नो व्हाट एग्जैक्टली आई एम सेइंग, बट द थिंग इज कि कॉमन सेंस अगर आपका चैलेंज किया जा रहा है तो सम वाला भी गलत होगा, इसलिए आई एम सेइंग 2% रॉन्ग भी होंगे एनीवेज। बट आई वुड से कि जनरली 98% टाइम सम वाले सही होते हैं। सम स्पीसीज ऑफ टर्टल्स आर हर्बीवोर्स, यस करेक्ट है, ठीक है। अब जो है इसको थोड़ा सर्च करना पीवाईक्यू में इसमें और पता करना कि कौन से स्पीसीज ऑफ टर्टल्स फाउंड इन इंडिया आर हर्बीवोर, ओके। अब जैसे यहां पे बोल रखे हैं ना सम, जस्ट गिव मी वन मोमेंट, यहां पे बोल रखा है ना सम, तो सम स्पीसीज ऑफ टर्टल्स आर हर्बीवोर। तो अब जाके सर्च कर लो, पता करो कि कौन से स्पीसीज ऑफ टर्टल आर हर्बीवोर, हमारे यहाँ जो भी टर्टल पाए जाते हैं उसमें कौन से आर हर्बीवोर। सम स्पीसीज ऑफ फिश आर हर्बीवोर, ठीक है। तो वापस से सम स्पीसीज ऑफ फिश आर हर्बीवोर, तो पता करो कौन सी स्पीसीज ऑफ फिश आर हर्बीवोर। सम स्पीसीज ऑफ मैरीन मैमल्स आर हर्बीवोर्स, ठीक है। अब इसका तो आई होप यू गाइस नो, टीटीएस में इसको तुम्हें मतलब बार बार हर साल 3 साल से लगातार इसमें एक क्वेश्चन डालता हूँ इस पर्टिकुलर फैक्ट का। सम स्पीसीज ऑफ स्नेक्स आर, अब ये तो सबको पता होगा, ओके। सो करेक्ट आंसर इज डी। अब कौन कौन सी और स्पीसीज हैं जो विविपेरिटी दिखाती हैं, ठीक है, सर्च दैट, ठीक है। दैट इज हाउ यू बेसिकली research, do the research on PYQs and prepare for the questions that would be asked in the next year. Question number 29. So question is wildlife and naturally found in पूछ रखा है bluefin महशीर कावेरी रिवर, yes this is correct. इरावदी डॉल्फिन चंबल रिवर, नो। डॉल्फिन जो है वो जनरली कहाँ पाई जाती है? फ्रेश वाटर इकोसिस्टम के अंदर, पहली चीज तो। फिर आप बोलोगे नो नो इरावदी इज एक्चुअली फाउंड इन द डर्टी वाटर ऑल्सो, बट देन इरावदी इज फाउंड इन व्हाट, नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन में या फिर उड़ीसा वाली जगह पे पाई जाती है, इट्स नॉट फाउंड इन चंबल रिवर, ठीक है। रस्टी स्पॉटेड कैट, ठीक है, रस्टी स्पॉटेड कैट। अब देखो 2 गलत हो गया तो 2 के जाते ही आपका आंसर आ गया, द करेक्ट आंसर इज सी, ठीक है। थोड़ा सा एनालाइज करते आप पीवाईक्यूज को और डिटेल में तो इट वुड हैव हेल्प्ड यू दिस ईयर, ठीक है, क्योंकि महशीर पूछ लिया था। तो अब क्या है, महसीर स्पीसीज या डॉल्फिन स्पीसीज, कैट स्पीसीज, ठीक है, टर्टल स्पीसीज, ऑल दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यूपीएससी। या फिर लेपर्ड स्पीसीज कौन कौन सी पाई जाती है, कहाँ कहाँ पाई जाती है, ठीक है, स्क्विरल स्पीसीज, ऑल दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, ठीक है। अब वही हुआ कि ये 2022 में वापस से पूछ लिया महसीर, गोल्डन महसीर के ऊपर क्वेश्चन आया था, टीटीएस में भी था 2022 वाले में, यहाँ पे भी था। डॉल्फिन पे दिस ईयर यू विल सी अ क्वेश्चन ऑन डॉल्फिन इन 2023। जब आ जाए तो फिर इस कमेंट सेक्शन में नीचे लिख के चले जाना क्या आ गया। Why is there a great concern about microweeds that are released into environment? ठीक है, तो microweeds क्या होते हैं पहले you should know that, and then they are harmful, they are considered harmful to the marine ecosystem, they are considered cause disease. So this was again current affairs question, ठीक है, microplastic, microweeds and all that was in news, ठीक है। So answer, correct answer is A actually. Moving on, let us look at question 31. अब इसको थोड़ा और एडिशनल से सर्च कैसे करें, तो पॉल्यूटेंट्स इज एन इंपॉर्टेंट थीम, ठीक है। तो सर्च करो कौन से पॉल्यूटेंट्स न्यूज में आ रखे हैं, और इसके लिए यूज डाउन टू अर्थ, वहां से सीधा सीधा उठा के पूछती है यूपीएससी पॉल्यूटेंट्स के लिए एज इट इज। वाइल्ड लाइफ के लिए द हिंदू पूछती है एज इट इज। आप कितना इंडियन एक्सप्रेस पढ़ लो, वाइल्ड लाइफ का क्वेश्चन हिंदू से ही आएगा, साइंस टेक का क्वेश्चन हिंदू से ही आएगा, ठीक है। पॉल्यूटेंट्स का क्वेश्चन डाउन टू अर्थ से ही आएगा, ठीक है। पॉलिटी एक्सप्लेन्ड
जब भी एक्सप्रेस में आएगा तो उसका क्वेश्चन यूपीएससी में मिलेगा, ये फिक्स हो चुके हैं उनके सोर्सेज। ओके, रिसेंटली देयर वाज ग्रोइंग अवेयरनेस इन आवर कंट्री अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ हिमालयन नेटल। ठीक है, अभी इसको यूपीएससी पक्का पूछने वाली है, अब इस साल पूछे या कब पूछे, दोबारा पक्का पूछेगी, बिकॉज इट इज इन न्यूज, डाउन टू अर्थ में वापस से न्यूज में आ रखा है, एंड थोड़ा डिटेल में भी पूछा जा सकता है। बिकॉज इट इज फाउंड टू बी सस्टेनेबल सोर्स ऑफ वॉट। नाउ अगर आपको इसका आंसर नहीं पता है, देन इट इज अ वेरी टफ क्वेश्चन, बिकॉज यू कांट जस्ट गेस कि व्हाट कुड बी द आंसर। ठीक है, फिर भी अगर आप कर सकते हो तो थोड़ा ऐसे दिमाग लगा सकते थे, वो समझाता हूँ, लाइक हाउ आई कुड हैव डन दैट, और हाउ इट कुड हैव बीन स्पेकुलेटेड, और आई वुड से कि गेस कर सकते थे। इंपॉर्टेंस बिकॉज सस्टेनेबल सोर्स सस्टेनेबल सोर्स, द कीवर्ड हियर इज सस्टेनेबल। ठीक है, एंटी मलेरिया ड्रग, बायोडीजल, ये तो बहुत बहुत कम चांसेस है इसके तो। पल्प फॉर पेपर इंडस्ट्री, वेरी वेरी लेस चांसेस। ठीक है, कोई हिमालय में कोई चीज पाई जा रही है जो बहुत ज्यादा आपने नहीं सुनी है, सॉरी, आपने बहुत ज्यादा नहीं सुनी है, इसका मतलब इट हैज टू हैव सम यूनिकनेस, और वही उसने दे रखा है कि यूनिक ये है कि इट इज अ सोर्स ऑफ समथिंग। बायोडीजल के लिए तो आप जो है जतोरपा यूज कर लो यार, पल्प के लिए तो आप जो है कोई भी पेड़ यूज कर सकते हो, इट इज नॉट, इट्स कोई खास बात नहीं है इसकी, खास बात ढूंढनी है, क्वेश्चन इज ऑल अबाउट ढूंढिंग दैट खास बात। तो खास बात आपको है कि एंटी मलेरियल ड्रग हो सकती है, टेक्सटाइल फाइबर हो सकता है। ठीक है, बिकॉज दीज आर वेरी यूनिक थिंग्स जो आपको मिल सकती हैं। अब यहां के बाद आई कांट हेल्प यू। ठीक है, इसमें आई वुड हैव एक्चुअली गॉन विद ए, क्योंकि जनरली जो ऐसी चीजें पाई जाती हैं दे हैव मोस्टली दे हैव दी थ्योरेटिक उनकी प्रॉपर्टीज होती हैं, मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती हैं। सो इन दैट सेंस आई वुड हैव चोजन ए, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बट द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी, एंड दैट इज ओके। आप गलत हो गए, इसमें कोई बात नहीं है, आप 50-50 करोगे, बहुत बार आपका गलत भी होगा, एंड दैट इज पार्ट ऑफ गेसिंग, इजंट इट? गैस करने का बेस्ट पार्ट ये है, आप गैस ही कर रहे हो। ठीक है, तो गलत भी हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फॉर द मेजरमेंट एस्टिमेशन विच ऑफ द फॉलोइंग आर सैटेलाइट इमेजेस रिमोट सेंसिंग डेटा यूज? PYQ सीधा सीधा 2015 का क्वेश्चन एज इट इज रिपीट कर दिया, एज इट इज मतलब थोड़ा सा एडिशनल सर्च करके। क्लोरोफिल कंटेंट इन द वेजिटेशन ऑफ अ स्पेसिफिक लोकेशन, यस। ग्रीन हाउस गैस इमिशंस, यस। ठीक है, लैंड सरफेस टेम्परेचर ऑफ स्पेसिफिक लोकेशन, यस। आंसर इज डी। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा करंट अफेयर का क्वेश्चन था, 2018 में रिपोर्ट आई थी, उसी को जो है उन्होंने पूछ लिया कि इनमें से आप पता करो क्या है। बोले हम तो पढ़ के नहीं आए, तो फिर कैसे करें, तो वो ट्राई करते हैं, चलो करते हैं ट्राई। सो वी हैव सम स्टेट्स, ऑलराइट, with reference to states mentioned above, terms of the percentage of forest cover, total area of state, which one of the following is the correct ascending order? ठीक है, ओके, तो पहले तुमको पता होना चाहिए कि यहां पर एरिया वाइज नहीं मैं बोल रहा हूं, यहां पे परसेंटेज ऑफ एरिया, दैट एरिया का परसेंटेज। तो कुछ लोग तो ये लॉजिक लगा देंगे भाई इनके स्टेट के एरिया वाइज लगा दो सीधा सीधा, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो अब कितने परसेंटेज एरिया में आपको फॉरेस्ट कवर मिलेगा ये सोचना है। ठीक है, आई होप कि आप ये तो मुझे बता दोगे कि इसमें सबसे मैक्सिमम किसका हो सकता है। ठीक है, तो आई एम वेरी श्योर कि सबसे ज्यादा जो लड़ाई चलती है, दंगा फसाद चलता है रिलेटेड टू द फॉरेस्ट, ठीक है, वो होता है छत्तीसगढ़ में। यानी कि कुछ भी हो, टुक टुक टुक, यहां तो वन ही आना चाहिए, एटलीस्ट दिस मच यू कैन गेस। ठीक है, इतना गैस कर सकते हो आप। सो दिस इज गॉन, दिस इज गॉन। या इसको ऐसे भी गैस कर सकते थे, ऐसे भी बता देता हूं कि आप ये सोचो कि सबसे मैक्सिमम वाले पे फोकस करो। सबसे मैक्सिमम में कौन है? एक तो है आपके पास 4 है और एक 1 है। ठीक है, यानी 4 या 1 है, तो पहले आप चूज करो फटाफट से कि 4 ज्यादा हो सकता है 1। तो उसमें आई होप यू गाइस कैन सिंपली फील इट कि 4 से तो ज्यादा ही बड़ा होगा 1। ठीक है, वाई? बिकॉज उड़ीसा में तो बहुत सारी चीजें पाई जाती हैं, मतलब मोस्टली ड्राई डेसिडुअस पाया जाता है। देन यू हैव लॉट्स ऑफ लेक्स, लॉट्स ऑफ रिवर्स, लॉट्स ऑफ बीचेस आल्सो। छत्तीसगढ़ बीइंग द स्टेट जो कि लैंड स्टेट है, तो उसमें जो है एरिया ज्यादा फॉरेस्ट को मिल रहा होगा। तो कुछ भी लॉजिक लगा के भाई, कुछ भी लॉजिक लगा के, कुछ भी तेजस्वी लोग बनो, कुछ भी करके यू गेस इट दैट आंसर जो है वो 1 में ही खत्म होगा, यानी दिस इज गॉन एंड दिस इज ऑल्सो गॉन।
तो अब इसमें तो ज्यादा कुछ कर नहीं सकते, देन अब इसमें चूज करना है। अब इसमें आई कांट हेल्प यू, वापस से 50-50 वाली सिचुएशन हो गई। बट स्टिल आई वुड से कि आप जो है थोड़ा गेस कर सकते थे दिमाग लगा के कि यार महाराष्ट्र और एमपी में से ज्यादा ट्राइबल जो है महाराष्ट्र में रहते हैं, ज्यादा ट्राइबल बेल्ट महाराष्ट्र में है, ज्यादा फॉरेस्ट भी महाराष्ट्र में होने के, सॉरी मध्य प्रदेश में है, तो मध्य प्रदेश में होने के ज्यादा चांसेस है। महाराष्ट्र अगेन बिकम्स, एज फार एज फॉरेस्ट इज कंसर्न, महाराष्ट्र अगेन इज अ कोस्टल स्टेट, तो ये दोनों नीचे होने चाहिए थे। तो आंसर में 2-1 ऐसा, सॉरी 4-2-1, क्योंकि वो तो अपन फिक्स कर चुके हैं, आई एम सॉरी, ये तो अपन फिक्स कर चुके हैं, तो यहाँ पर जो है 2 होना चाहिए। दैट इज हाउ यू कुड हैव गेस्ड इट। अब ये बहुत अच्छा लॉजिक नहीं है, बट द बेस्ट पार्ट इज कि इस लॉजिक से आंसर आ जा रहा है। ठीक है, द करेक्ट आंसर दैट कम्स आउट इज सी। ठीक है, समझ आ रहा है कि स्टार्टिंग महाराष्ट्र से देन एमपी देन वो। सो कभी कभी क्या होता है ना कि यही चीज है कि आम आदमी की तरह सोचोगे तो फिर आप बोलोगे यार ये तो मैंने पढ़ा नहीं एंड आई हैव नॉट रेड इट सो आई कांट सॉल्व इट, तो आप काट के आगे बढ़ जाओगे। बट देन आप खास आदमी की तरह सोचो, थोड़ा बेसिक कॉमन सेंस लगाने की कोशिश करो। ये पीवाई क्यूज में बहुत होता है। ठीक है, कि कई बार आप जो है अच्छे दिमाग से माइंडफुलनेस के साथ अगर एग्जाम सॉल्व करोगे तो आप बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस व्हिच यू माइट नॉट हैव read about, you could actually solve them. ठीक है, which of the following statements are correct about the deposits of methane hydrate? So again this was current affair inspired question, directly current affair में आया था। I remember जब द हिंदू ने सबसे पहली बार एक्सप्लेन स्टार्ट किया था, तब ये उन्होंने दिया था 2017 या 18 में, पर ये 2019 का क्वेश्चन है, सो कंटेम्पररी अफेयर्स में बोलूंगा। सो मीथेन आपको पता है इज अ गैस जो ग्लोबल वार्मिंग कराती है, ग्रीन हाउस गैस है, इतना पता है तो पढ़ते हैं। ग्लोबल वार्मिंग माइट ट्रिगर द रिलीज ऑफ मीथेन फ्रॉम दीज डिपोजिट्स। ठीक है, देख सकते हो डिपोजिट्स ऑफ मीथेन हाइड्रेट, यानी अभी तक वो नहीं है तो वो रिलीज होंगे कैसे? हाउ कैन यू एक्सप्लेन? कैन स्टेटमेंट 1 एक्सप्लेन दिस पर्टिकुलर थिंग? यस, ग्लोबल वार्मिंग होगी, सी आइस पिघलेगी, सब खत्म होगा तो मीथेन निकल के आएगा, 1 आंसर में होना चाहिए। लार्ज डिपोजिट्स ऑफ मीथेन हाइड्रेट आर फाउंड इन द आर्कटिक टुंड्रा एंड अंडर द सी फ्लोर। ओके, पता नहीं, इसको बाद में आएंगे। मीथेन इन एटमॉस्फेयर ऑक्सीडाइजेस टू कार्बन डाइऑक्साइड आफ्टर अ डेकेड और 2। ठीक है, तो अगेन देखो स्ट्रिक्टली क्या इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट में एग्जामिनर ने कोई भी इंफॉर्मेशन तुमको स्ट्रिक्टली दी है कि दिस इज द स्ट्रिक्ट डेफिनेशन, दिस इज द स्ट्रिक्ट स्टेटमेंट, दिस इज द स्ट्रिक्ट फैक्ट? नो, it oxidizes to carbon dioxide after a decade or 2, तो जनरली ऐसे स्टेटमेंट क्या होंगे? करेक्ट होंगे। ठीक है, समझ में आ गया? या तो 10 साल में हो जाएगी या 20 साल में हो जाएगी, मतलब कुल मिला के कहना चाह रहा है 5 से 15 के बीच में कभी भी हो जाएगी। दैट्स हाउ साइंटिस्ट से थिंग्स। ठीक है, तो 3 भी होना चाहिए। अब ये देखो, इसको अगर आप गलत कर दोगे ना तो थोड़ा सा आपकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी फ्लॉड हो जा रही है फिर से, जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, कॉमन सेंस वाली बात समझ नहीं रहे हो भी। Okay, let us look at the statement 2 now. Large deposits of methane are found in Arctic tundra. तो पहले वाले से दूसरा वाला स्टेटमेंट निकल के आ रहा है अंडर द सी फ्लोर। ठीक है, एंड बोला है, यानी कि यहां पर भी है और सी फ्लोर पर भी है। हाँ सही बात है, और कहां होगी? यही होगी। अगर और कहीं होती तो हम ऑलरेडी उसे यूज कर रहे होते ना गाइस। ओके, Which of the above are released into the atmosphere due to burning of biomass or crop residue? देख लेते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड, यस आपको पता है, आई होप यू गाइस नो। स्टबल बर्निंग, ठीक है। मीथेन, यस, ठीक है। पूरा अगर कंप्लीट कंबंशन हो जाएगा तो सो 1 और 2 आंसर में होनी चाहिए। दिस इज गॉन, दिस इज गॉन, नाउ दिस इज देयर, दिस इज देयर। अब वो बोल रहा है आर रिलीज्ड, तो ओजोन, ओजोन रिलीज नहीं होती एक्चुअली। ठीक है, ओजोन डायरेक्टली नहीं रिलीज होती। ठीक है, ओजोन दूसरे, बिकॉज ओजोन इज अ सेकेंडरी पॉल्यूटेंट, तो डायरेक्टली रिलीज नहीं होती। ठीक है, फिर सल्फर डाइऑक्साइड, यस ये होती है। अब आंसर में होना चाहिए क्या 1, 2 एंड 4? ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है, तो करेक्ट आंसर इज डी। इसका मतलब एग्जामिनर ने काउंट कर लिया ओजोन को, ऑल्दो इट इज नॉट डायरेक्टली रिलीज्ड। ओके, ऑप्शन की सेटिंग को भी चेक करो कभी कभी। सो सी इज गिवन, बॉर्डरिंग कंट्री इज बीइंग आस्क्ड। ठीक है, अब इसी में से यूपीएससी वापस 1-2 पूछ लेगा, एंड आई होप यू गाइस नो कौन सा वाला पूछने वाला है। यू विल फाइंड दिस ईयर। एड्रियाटिक सी, अल्बेनिया, ब्लैक सी, क्रोशिया, कैस्पियन सी, कजाकिस्तान, मेडिटेरियन सी, मोरक्को, रेड सी, सीरिया। ठीक है, अब आपसे पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्टली मैच्ड, तो इसमें आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि सबको सारे पता होंगे। पता है तो बहुत अच्छी बात है, दिस इज द बेस्ट थिंग, बट आई डोंट
आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि तुमको पता होंगे, तो अपन एटलीस्ट ये तो बहुत ज्यादा पढ़ते हैं, ठीक है। मेडिटेरेनियन तो वो यूपीएससी लगभग हर 2-3 साल बाद पूछती है। तो रेड सी तो आई होप आपको पता होगा, सीरिया। रेड सी कहां पर है? यहां पर रेड सी है, ठीक है। यहाँ पे इसराइल है, यहाँ पे लेबनान है, यहाँ पे सीरिया है। उल्टा बना दिया थोड़ा, पर ठीक है, मोटा मोटा समझ गए। सो पांच, पांच तो गलत हो गया। आई होप यू गाइस समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं। तो 5 इज रॉन्ग, तो 5 चला गया। इतना बेसिक तो पता होगा सबको, इतना न्यूज़पेपर हम पढ़ते हैं कि रेड सी सीरिया रॉन्ग, सो दिस इज गॉन, ठीक है। अब मैं 50-50 में आ गया जस्ट बाई नोइंग वन बेसिक थिंग। अभी भी यूपीएससी ने क्या बोला है, अगर आप मेडिटेरेनियन भी जानते हो तो आपका आंसर आ जाएगा। क्या नहीं आ रहा है? सॉरी, नहीं आ रहा है, इतना तो नहीं कर रहे हैं वो। तो ये तो वैसे करेक्ट ही है, ये मेडिटेरेनियन सी है। यहाँ पे मोरक्को और ये सब लाई करते हैं, अफ्रीका यहाँ नीचे जाता है, ठीक है। अब देखते हैं, अब मेरे को आंसर 1 से भी नहीं मिल रहा है, 2-3 में से एक पता ही होना चाहिए। तो आई होप आप जो है कैस्पियन सी आपको पता होगा, ठीक है, बिकॉज कैस्पियन सी भी बहुत न्यूज में रहता है। तो आई होप ये आपको पता होगा। ये नहीं पता है तो कजाकिस्तान तो आपको पता होगा, ठीक है। दैट इट इज करेक्ट, सो करेक्ट आंसर इज दिस। करने का मैपिंग के लिए क्या करें? मैपिंग के लिए जो है ये जो सारी चीजें हैं, दीज ऑल आर स्टैटिक क्वेश्चंस, ठीक है। नहीं है न्यूज में तो भी आपको पढ़नी चाहिए, ठीक है। तो व्हाट यू डू इज कि आप जो है, विच आई हैव ऑलवेज सेड, कि आप जो है 7 दिन को डिवाइड कर लो, कि एक दिन ये, एक दिन ये, और उसको रिपीट साइकिल में लगा दो। 10 मिनट के लिए सोने से पहले मैप देखो, जगने के बाद 10 मिनट के लिए मैप देखो, ज्यादातर मैप तुम्हें ऐसे ही याद हो जाएंगे। ओके, चलते हैं आगे। Among the following, which one of the following is the largest exporter of the rice in the world in last 5 years? तो ये तो होंगे नहीं, या तो इंडिया होगा या चाइना होगा। तो उसमें आप पता करना, अभी चेंज होते रहते हैं। तो उन्होंने क्या बोला भाई, 5 साल का बताओ। सो इंडिया इज, ठीक है, सॉरी। देन यू हैव ग्लेशियर्स एंड रिवर, ठीक है। ऑल्दो व्हाई दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड, इट वाज इन न्यूज, सम ऑफ द ग्लेशियर्स वर इन न्यूज। मोदी जी ने बहुत सारी नई नई जो है वो लॉन्च की थी, इसलिए टनल्स बहुत सारी लॉन्च की थी। बट देन वैसे भी आपको पढ़ना ही चाहिए, बिकॉज दीज आर स्टैटिक क्वेश्चंस, ठीक है। बंदर पूंछ, ठीक है। 12 सिगरी, बड़ा सिंगरी बोलते हैं इसको। मिलाम, सियाचिन, जीमू, ठीक है। तो आई फील कि वैसे ये क्वेश्चन आसान है देखा जाए तो, अगर आप जो है आपकी ज्योग्राफी अच्छी है, ठीक है। वरना तो बहुत डिफिकल्ट है। तो जब डिफिकल्ट होता है तो हम क्या करते हैं, 5 है ना अपने पास, तो ऑप्शंस में फिटाने की कोशिश करते हैं। ओके, कुछ नहीं पता तो आई होप यमुना रिवर का तो पता ही होगा, ठीक है। इतना तो आई एम एक्सपेक्टिंग पता होगा सबको कि यमुना रिवर जो यमुनोत्री से निकलती है उसको बंदर पूंछ भी बोलते हैं। सो दिस इज गॉन। अब बचा ये, ठीक है। ये भी नहीं तो फिर जीमू पे आ जाओ, इट इज नॉट मानस। इतना भी पता होगा ना तो सही है। एनीवेज, बट देन इट बिकम्स डिफिकल्ट, क्योंकि मेरे को भी खुद को भी 1 और 5 ही आता है। सो आई डोंट नो क्या है इसका आंसर, बट जो भी है प्लीज सॉल्व इट। गेस कर लेता हूं चलो आपके लिए, ठीक है। तो मेरे को 1 और 4 तो सब में कॉमन ही है, तो आई हैव टू चूज बिटवीन 2 एंड 3, ठीक है। एंड आई विल गो विद 1, 2 एंड 4। क्या आंसर है इसका? करेक्ट है सर। बस तो फिर बस ऐसे ही सीखते जाओ, तुक्का बिड़ाना। इन द यूज ऑफ कार्बोफ्यूरान, ठीक है, मिथाइल पैराथियन, फोरेट और कुछ कुछ दे रखे हैं, viewed with apprehension these chemicals are used as, ठीक है। अब देखो, अब यूपीएससी ने ये पूछ लिया, अगली बार वो पूछ लेगी why they are seen with apprehension। किसी एक का नाम देके पूछ लेगी why this particular chemical is seen with apprehension, सिंपल, ठीक है। सो दे आर बेसिकली द पेस्टिसाइड्स, ठीक है। करंट अफेयर का क्वेश्चन है ये, ठीक है। कोई गुप्ता कमेटी आई थिंक सेटअप की गई थी, नाम मैं भूल रहा हूँ। अनुपम वर्मा। या ए मुझे याद आ रहा था, वर्मा, अनुपम वर्मा कमेटी वाज सेटअप। उसने जो इनको आउटलॉ करने की बात करी थी। सो इट वाज एन इजी क्वेश्चन इन दैट सेंस, पर नाम याद रखना बड़ा डिफिकल्ट है, ठीक है। तो अभी देखो, ये भी एक और ट्रिक बताता हूँ जो मैं बहुत बार यूज करता हूँ एक्चुअली, ठीक है। मैं क्विकली बताता हूँ। अब जैसे ऑल्दो ये तो मैंने 2019 का, आई डिडंट राइट 2019, ठीक है। बट 2021 में जैसे मैंने एक ट्रिक लगाई थी ये वाली, कि कुछ पूछ रखा था खाटू दीदमा और ये सब, ठीक है। तो मेरे को ना आंसर नहीं मिल रहा था पहले। खाटू से आई वाज लाइक कि ये वाली होगी, बट पूरा आंसर में आई वाज कंफ्यूज। तो फिर मैंने दिमाग लगाया कि
इसका करंट अफेयर कॉन्टेक्स्ट क्या हो सकता है, बिकॉज यूपीएससी आउट ऑफ नोवेयर रैंडम उठा के मेरे से नहीं पूछेगी कि बता भाई ये तूने कहां पढ़ी है। समझ में आ रहा है? यूपीएससी ये सब होता है कहां पर, ये सब होगा तुम्हारे विजन आईएएस के पेपर्स में, फॉरम के पेपर्स में, ठीक है, ये सब यूपीएससी में नहीं होगा। देयर हैज टू बी सम रीजन व्हाई यूपीएससी इज आस्किंग दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो मैंने पता लगाया कि हाँ भाई वो सांवर लेक वाज इन न्यूज, वहां पे कोई आरचाई बैक्टीरिया या कुछ मिला है, उसकी वजह से जो है सांबर वाज इन न्यूज, तो प्रॉब्ली दैट इज व्हाई दे आर आस्किंग दिस। ठीक है, तो अगर आपको एग्जैक्ट रीजन नहीं पता है, बट इफ यू न्यू दैट पर्टिकुलर न्यूज दैट अनुपम वर्मा कमिटी वाज सेट अप फॉर सम एग्रीकल्चर रिलेटेड इशू व्हिच वाज इन पीटी 365 बाय द वे, ठीक है, तो भी आप गेस कर सकते थे कि प्रॉब्ली ये वो केमिकल्स होंगे। ठीक है, बट देन बिकॉज आई डू नॉट एक्सपेक्ट यू कि आप जो है इनके नाम याद रख लो, ठीक है, वेरी डिफिकल्ट, बट एटलीस्ट न्यूज कॉन्टेक्स्ट भी याद रखोगे तो भी कभी कभी हेल्प हो जाता है। कभी कभी ये देखो भैया ये ट्रिक है, कभी आप गलत भी हो जाओगे इसके थ्रू, कभी सही भी आंसर मिलेगा, तो दैट इज जस्ट आई फील कि वही तो है यूपीएससी का तुक्का बन रहा है आजकल। अंडर रामसर कन्वेंशन इट इज मैंडेटरी तो कुछ है ही नहीं, टू प्रोटेक्ट एंड कंजर्व ऑल वेटलैंड्स इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, कुछ भी मैंडेटरी नहीं है पहली बात तो, उसमें भी ऑल तो बिल्कुल नहीं है, सो दिस इज गॉन। व्हाट डू यू हैव इज दिस, तो 3 तो सही हो गया, सोच ही नहीं रहा। वेटलैंड्स रूल्स वर फ्रेम्ड बाय गवर्नमेंट बेस्ड ऑन रिकमेंडेशन, ये तो बिल्कुल गलत है। कोई रिकमेंडेशन, द वर्ड यूज्ड हियर इज रिकमेंडेशन, नोबडी गिव मी द रिकमेंडेशन, ठीक है, दे वर फ्रेम्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन लाइट ऑफ recommendations of या in light of Ramsar Convention is okay, no recommendations were made, ऐसा कोई रिकमेंडेशन रामसर करेगा ही नहीं। अब इसका लॉजिक आप सोचो, रामसर कब हुआ, कभी तो 1980 में जाके साइन हो गया, और अब तुम 2010 में ला रहे हो, 30 साल बाद रिकमेंडेशन को इंप्लीमेंट कर रहे हो। अगर रिकमेंडेशन होगी तो आपको विद इन 5 years करना होगा। फॉर एग्जाम्पल बायोडाइवर्सिटी जो है कुछ आया 1992 में, फिर उसके बाद जो है 2002 में, ठीक है, तो तुरंत जो है अपने को जो है 1992 में बायोडाइवर्सिटी के लिए कुछ करना पड़ा, पॉलिसी लेके आनी पड़ी, 2002 के अंदर हमको एक्ट लाना पड़ा। तो रिकमेंडेशंस अगर होती हैं, इफ यू आर साइनिंग अ पर्टिकुलर ट्रीटी, तो बहुत जल्दी आपको इंप्लीमेंट करना पड़ता है। ऐसे भी आप सोच सकते हो इस चीज को, यू नो, जस्ट अबाउट थिंकिंग द थिंग्स। और हम एक्चुअली वहां पे पेपर सॉल्व करते समय देयर आर 2 अप्रोचेस। वन अप्रोच, क्वेश्चन आया सामने, ठीक है, अब उस क्वेश्चन, हाँ भाई क्वेश्चन आ गया, एक अप्रोच ये है कि ये क्वेश्चन मैंने कहां पढ़ा है, ठीक है, ये क्वेश्चन मैं रिकॉल करने की कोशिश कर रहा हूं, कौन से टॉपिक से हो सकता है, कौन सी थीम से हो सकता है, इसके रिलेटेड न्यूज क्या हो सकती है। एक अप्रोच होता है कि ये क्वेश्चन आया, क्या मुझे इसका आंसर मेरी मेमोरी में है, ठीक है, तो आपको ये दोनों अप्रोच मिलाने पड़ेंगे। यू जस्ट कांट बी सॉल्विंग पीवाईक्यूज, आप जो सॉल्व कर रहे हो वहां से यही लर्निंग आपको करनी है कि यू जस्ट कांट बी सॉल्विंग द क्वेश्चंस बाय मेथड 2, कि बस मैं क्वेश्चन पढ़ूं और मैं मेरी मेमोरी पे जाके ढूंढूं कि इसका आंसर क्या होगा। यू हैव टू थिंक लाइक दिस आल्सो, कि ये क्वेश्चन का क्या रेफरेंस है, ये क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है, क्वेश्चन मतलब क्या कहना चाह रहा है, क्या एटिमोलॉजी लग रही है, क्या स्टेटमेंट 1 और 2 दोनों साथ जा सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं, सम है कि मस्ट है, मे है कि कैन है, you know, you have to think like that also। समझ में आ गया? All so when you are doing this ना, by doing this you are developing a skill called emotional intelligence, trust me, and UPSC is testing that। ठीक है, चलो, agricultural soils release nitrogen oxides into environment, yes obviously, cattle releases ammonia into environment, yes, पाउल्ट्री इंडस्ट्री रिलीजेस रिएक्टिव, ये सब सही है, सब बिल्कुल। आप कैसे प्रूव कर दोगे कि ये नहीं करती है? करती है। अब वापस अगेन अ सिमिलर क्वेश्चन, व्हाट इज कॉमन टू प्लेसेस नोन एज अलियार, इसापुर और कांसाबाती, ठीक है, तो एवरीवन की यार ये पता नहीं यूपीएससी ने क्यों पूछ लिया, ठीक है, तो आप कॉन्टेक्स्ट पकड़ने की कोशिश करो, व्हाट कुड हैव बीन द रीजन व्हाई यूपीएससी आस्क्ड इट, रैंडमली कहीं से नहीं पूछ रही है यूपीएससी, ट्रस्ट मी। तो उन्होंने कॉन्टेक्स्ट देने की भी कोशिश करी, सी दे नो हाउ यू मस्ट बी थिंकिंग। समझ में आ रहा है तुमको? यूपीएससी नोज, यूपीएससी वांट्स यू टू थिंक लाइक दैट, इसीलिए वो एक स्टेटमेंट ऐसा दे रहे हैं रिसेंटली, बिकॉज दे वांट यू टू थिंक लाइक दैट, तो स्टार्ट थिंकिंग लाइक दैट, दे आर एक्सपेक्टिंग यू टू थिंक लाइक दैट, कि आप यूपीएससी को समझो कि यूपीएससी रैंडमली क्वेश्चन नहीं पूछ रही है, हैज टू बी सम कॉन्टेक्स्ट, तो वो कॉन्टेक्स्ट भी दे रहे हैं रिसेंटली। अब वो आंसर सही है गलत है वो पता नहीं, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, अंडरग्राउंड केव सिस्टम्स, वाटर रिजर्वोयर्स, ठीक है,
ओके, सो थिंक लाइक दैट। तो उस साल क्या न्यूज में था, ठीक है। बट एनीवेज, फिर भी आई वुड से दिस वाज अ टफ क्वेश्चन, बिकॉज अगर आप ऐसे सोचते हो तो आप फिर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट को सिर्फ और सिर्फ इसको एलिमिनेट कर पाओगे, बिकॉज दैट ईयर दिस एंड दिस बोथ वर इन न्यूज, एवरीवन इज इन न्यूज। अच्छा, अब इसमें थोड़ा और मैं फाइन ट्यून करता हूं। दिस वाज नॉट एग्जैक्टली इन द न्यूज, बट वो कॉन्टेक्स्ट दे रहा है रिसेंटली, तो आप शायद कंफ्यूज हो सकते हो। न्यूज में तो ये दोनों थे सिर्फ, दैट पर्टिकुलर ईयर 2018-19 की साइकिल में दीज टू थिंग्स वर इन न्यूज। ये तो हिंदू में दोनों आए थे, तो यहां पे आप कंफ्यूज हो सकते हो, ठीक है। ओके, सो द करेक्ट आंसर इज एक्चुअली डी, ठीक है। सो इट वाज अ वेरी वेरी टफ क्वेश्चन आई वुड से, और इसमें गलत होने के चांसेस भी बहुत ज्यादा हाई हैं। इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ proposals to use the hydrogen enrich this fuel for buses in this because the following statements. The main advantage of the use of is elimination of carbon monoxide emissions. Fuel reduces carbon dioxide and hydrocarbon emissions. Hydrogen up to 1/5 by volume can be blended with this makes the fuel less expensive, ठीक है। तो अब देखो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यूपीएससी ने बहुत सारी ट्रिक्स को यहाँ पे क्वेश्चन कर दिया एक साथ, ठीक है। अब देखते हैं, चलो। तो ऑलमोस्ट एवरी स्टेटमेंट हैज समथिंग जो आप सोचोगे दैट दिस वाज प्रोबेबली मैनिपुलेटेड बाय द एग्जामिनर, ठीक है। हाउ वुड आई अटेम्प्ट दिस? मैं पहले पकड़ूंगा इसको, मेक्स द फ्यूल लेस एक्सपेंसिव, नो इट कांट मेक दैट। नई टेक्नोलॉजी हमेशा स्टार्टिंग में महंगी होगी, ठीक है। नई टेक्नोलॉजी हमेशा स्टार्टिंग में महंगी होगी, सो 4 इज एलिमिनेटेड, ठीक है। अब इसके बाद, अब देखो, ये भी एक फैक्ट है, 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 तो एक फैक्ट गलत हो गया। 4 अगर फैक्ट है तो एटलीस्ट 2 फैक्ट्स वुड बी करेक्ट, ठीक है। समझ में आ गई? 4 अगर फैक्ट है तो 2 फैक्ट्स एटलीस्ट वुड बी करेक्ट। द करेक्ट आंसर इज बी, एज पर दिस पर्टिकुलर थिंकिंग ऑफ माइंड। एक थिंकिंग समझाई, अब दूसरी थिंकिंग समझते हैं कि ये तो अपने को पता पड़ गया कि ये तो गलत है। नाउ लुक एट दिस, द मेन एडवांटेज ऑफ द यूज इज एलिमिनेशन. This is almost impossible. Nothing can eliminate one particular thing. Elimination is almost impossible. So this is also wrong in that regard also. So 1 is eliminated. The correct answer is B. ठीक है? तो आपको ये समझना होगा कि also ये भी नहीं समझ में आ रहा तो एक और अप्रोच बता देता हूं. Look at another approach. Look at this. Fuel reduces और elimination में से किसके ज्यादा चांसेस सही होने के हैं? रिडक्शन के, हमेशा रिडक्शन के. सो दैट लॉजिक. तो भाई यही है, यूपीएससी जो है आपको ये हार्डकोर फैक्ट पूछ रहा है, बट द थिंग इज दैट दे आर गिविंग यू सम पाथ आल्सो कि भाई इफ यू आर इमोशनली इंटेलिजेंट देन ऐसे करके देख लो, शायद हो जाए. ऑलराइट गाइस, थैंक यू फॉर joining in this session. I'm looking forward to discuss this particular paper in part 3 also and part 4 also. Thank you. Bye bye. Take care.